رقم کی وصولی کے ساتھ اور بھی زیادہ خوشیاں. دنیا بھر سے منی گرام کے ذریعے بھیجی گئی رقوم سنہری بینک کی 285 سے زائد برانچز سے وصول کریں اور بذریعہ قرآن اندازی جیتیں موٹر بائک، اسمارٹ فونز، کیش پرائزز اور کئی شاندار انعامات. مزید معلومات کے لیے 021-111-766-374. سنہری بینک، روشن ہر قدم. شرائط و ضوابط لاگو ہیں. ایک کھلاڑی آؤٹ. 9ویں اوور کا کھیل ہے. مینڈس سے سامنے اور بال میں تبدیلی کی جا رہی ہے. عامر کو اب ہٹا لیا گیا ہے. 4 اوورز کروائے ہیں عامر نے اور ان کی جگہ اب پہلی مرتبہ ہم اسپن دیکھیں گے اس میچ میں. عماد وسیم کو لایا گیا ہے. پچھلے میچ میں بھی اچھی گیندیں کروائی تھی عماد وسیم نے. Some sawdust being brought onto the field, and there are some wet portions here. جیسا بتایا زیدی صاحب نے کہ برادہ لا کے رکھا گیا ہے اس لیے کہ شاید بالر جہاں پیر ان کا آتا ہے مشکل پیش آتی ہے وہاں لینڈ کرنے میں یا کہیں اور ویٹ پیچ ہے تو اس کو پہلی گیند عماد کی گیند کو مڈ وکٹ کی جانب پش کیا تھا بغیر کسی رن کے. ایک بار پھر عماد اپنے بالنگ کے نشان پر آئے. گیند کی بیٹسمین ایک بار پھر اس گیند کو کھیلا. شارٹ فائنل کی پوزیشن پر دائرے میں فیلڈ کر رہے تھے فیلڈر. رن بننے کا موقع نہیں. مینڈس ہے سامنے. عماد کا پہلا اوور 37 پر 1 سری لنکا. Tanveer Imad was born in Glamorgan, and this ground should be very much acclimatized with this ground because sort of a home ground for him. He got his education in Glamorgan. 38 for the loss of 1 wicket. Imad standing to a very good line and length. D'Aquila is batting on 18 of 17 deliveries and Mendes is batting on 7. Imad brought in over number 9 or 8? 9. Next delivery, this time driven towards covers. There is no run. D'Aquila seems to be in command of the situation. 4 deliveries have been bowled in 9th. عماد ایک بار پھر بائیں ہاتھ سے گیند کرواتے ہیں. راؤنڈ وکٹ آئے. گیند کی اس مرتبہ ڈرائیو کیا اس گیند کو. گیند کورس میں فیلڈ کیا گیا اور تیزی کے ساتھ ایک رن یہاں حاصل کیا. اچھے رننگ بٹوین دا وکٹ. اس مرتبہ بالکل دائرے کے اوپر کھڑے تھے کورس کے فیلڈر. گیند کو پش کیا. ایک آدھ قدم وہ اپنے دائیں جانب دوڑ کر گیند کو اٹھایا اور اس دوران تیزی کے ساتھ ایک رن مکمل کیا دونوں بیٹسمینوں نے. دوسرا رن ہے عماد کے اس پہلے اوور کا. 39 پر 1 اور اب 9ویں اوور کی آخری گیند. عماد آئے. گیند کی اس مرتبہ اس گیند کو نکالا ہے اسکوائر لیگ کی جانب اور 1 رن بنانے کا موقع. تو 3 رنز بنے ہیں عماد کے پہلے اوور میں. سری لنکا کا اسکور ہے 40. ایک کھلاڑی آؤٹ. 9 اوورز کا کھیل مکمل. ہم کرتے ہیں آپ کے اپنوں کی محنت کی قدر، اسی لیے اب آپ کو ملے گی رقم کی وصولی کے ساتھ اور بھی زیادہ خوشیاں. دنیا بھر سے منی گرام کے ذریعے بھیجی گئی رقوم سنہری بینک کی 285 سے زائد برانچز سے وصول کریں اور بذریعہ قرآن اندازی جیتیں موٹر بائک، اسمارٹ فونز، کیش پرائزز اور کئی شاندار انعامات. مزید معلومات کے لیے 021-111-766-374. سنہری بینک، روشن ہر قدم. شرائط و ضوابط لاگو ہیں. سری لنکا کی اننگ کی 10واں اوور اب شروع ہونے والا ہے. 9 اوورز میں اب تک پاکستان 1 کھلاڑی آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوا ہے. کامیاب بالر تھے جنید جنہوں نے آؤٹ کیا تھا دھنوشکا گناتھرکا کو. ملک نے ان کا کیچ پکڑا تھا. 13 رن بنانے کے بعد وہ آؤٹ ہوئے اور آج ٹاس جیتا ہے پاکستان نے اس بڑے اہم میچ میں اور بیٹنگ کرنے کا انہوں نے دعوت دی تھی. سری لنکا کو خود فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. عامر نے 4 اوورز میں 19 اور جنید نے 4 اوورز میں 18 رنز دیے جبکہ پہلے اوور میں 3 رنز بنے تھے عماد وسیم کے خلاف. جنید کی پہلی گیند. اس مرتبہ اس گیند کو نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اسکوائر لیگ ایریا کی جانب کوئی فیلڈر یہاں موجود نہیں. اچھا ٹائم کیا تھا. ہلکا سا پش کیا گیند جو کہ لیگ سٹمپ کے اوپر یہ گیند پچ ہوا تھا. بیک فٹ پر آتے ہوئے ذرا سا پش کیا اس گیند کو اپنی کلائیوں کے زور سے اور اسکوائر لیگ اور مڈ وکٹ کے درمیانی علاقے میں یہ گیند گیا اور بڑی تیزی کے ساتھ باؤنڈری لائن عبور کر گیا. اچھا ٹائم کیا اس مرتبہ میچ نے.
चौका लगाने में कामयाब हुए हैं। 10वें ओवर का आगाज पहली गेंद पर जुनैद के खिलाफ चौका लगा है। स्कोर हो गया है 44। एक खिलाड़ी आउट है। 4.8 की औसत से रन बनते हुए 10वें ओवर का पूरा खेल शुरू हुआ है और मेंडिस के सामने 12 रन पर बैटिंग कर रहे हैं जुनैद। राउंड द विकेट है, गेंद की वापस जुनैद की जानिब खेला और फ्रस्ट्रेशन में ये जुनैद ने विकेटों को मारने की कोशिश की है उस वक्त जबकि बॉलर बैट्समैन जो है ना तो रन अटेम्प्ट कर रहा था ना इरादा जाहिर कर रहा था। ये सिर्फ उस चौके की फ्रस्ट्रेशन थी जो एक गेंद पहले उनको लगा है। इस वजह से नहीं है ये अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचाया है। यहाँ थ्रो किया था, स्टंप्स पर भी थ्रो नहीं हुआ था, ये तो बैट्समैन की जानिब थ्रो किया था जुनैद ने। जुनैद एक मरतबा फिर आए, गेंद की शॉर्ट गेंद थी, घुमा दिया इसे। एक बार फिर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के जानिब एक और चौका। जब आप गुस्से में होंगे बिला वजह तो फिर आपसे अच्छी गेंद भी नहीं होगी, फिर वही काम होगा जो इस वक्त किया है आपके साथ मेंडिस ने। इस ओवर में दूसरा चौका लगाने में कामयाब हुए हैं मेंडिस। स्कोर 48। एक खिलाड़ी आउट है। ये 10वें ओवर का खेल है। खुद भी अपनी गेंद से नाखुश हैं जुनैद, लेकिन चौका लगने के बाद 48 पर 16 पर पहुंचे हैं मेंडिस। जुनैद एक बार फिर विकेट पर पहुंचे, गेंद की एक बार फिर विकेट की जानिब इस गेंद को घुमाया है। फील्डर इस बार गेंद को फील्ड करेंगे और एक ही रन बनाने का मौका। 9वां रन 10वें ओवर में अब तक बना है। 49 हो गया है श्रीलंका का स्कोर। 17 पर मेंडिस बैटिंग कर रहे हैं और अब इक्वाला सामने करेंगे जुनैद खान का जो अपना 5वां ओवर करवा रहे हैं। 4 ओवर करवाए हैं आमिर ने, 1 ओवर करवाया है इमाद वसीम ने और 5वां ओवर है ये जुनैद खान का अपने बॉलिंग के निशान पर पहुंचे। 9 रन बने हैं उनके इस ओवर में, 27 रन अब तक दिए हैं। एक खिलाड़ी श्रीलंका का आउट हुआ है धनुष्का। 13 रन बनाने के बाद वो आउट हुए थे। मलिक के हाथ में जुनैद के बॉलर और बाएं हाथ से खेलने वाले दिक्वेला सामना करेंगे जुनैद का। आए गेंद की इस मतलब आप सबसे बाहर गेंद थी, गेंद को ड्राइव करने के लिए गए थे, ड्राइव नहीं कर पाए, गेंद में कवर्स में आई जहां गेंद को फील्ड किया गया। रन बनने का इस मतलब भी मौका नहीं। और अब आखिरी गेंद करवाएंगे। आज पाकिस्तान धनुष्का को जल्द आउट करने में कामयाब जरूर हुआ। पिछले मैच में उन्होंने मेंडिस के साथ मिलकर अच्छी पार्टनरशिप की थी भारत के खिलाफ। 169 रन की 76 रन पर वो खुद रन आउट हुए थे, लेकिन आज 13 रन बनाने के बाद आउट हो गए। एक और शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, खेलने की कोशिश नहीं की दिक्वेला ने, गेंद को जाने दिया और अब अंपायर ने इशारा दिया है राजमिस के ये वाइड बॉल है। तो 50 रन मुकम्मल हो चुके हैं श्रीलंका के। एक खिलाड़ी उनका आउट है। 10वें ओवर का ये खेल है। शॉर्ट गेंद करवाई थी इस मरतबा जुनैद ने, खेलने की कोई मर्जी जाहिर नहीं की थी मेंडिस ने और अंपायर की तरफ देखते रहे। अंपायर ने बिलाखिर व्हाइट बॉल का इशारा दिया। जुनैद खान एक बार फिर अपने बॉलिंग के निशान की तरफ जाते हुए और अब अपने 5वें ओवर की आखिरी गेंद करवाएंगे जो कि 10वें ओवर की आखिरी गेंद होगी। जुनैद ने दौड़ना शुरू किया। अंपायर उसके नजदीक से गुजरे, गेंद की अच्छी गेंद, इस पर थमा अपील कर रहे हैं, लेकिन गेंद शायद बैट से लगती हुई विकेट कीपर के पास आई। फ्रंट फुट पर आकर खेलना चाहते थे, बीट हुए, गेंद बैट से लगती हुई विकेट कीपर के पास आई। अपील जरूर हुई लेकिन अपील मंजूर नहीं की गई। अंपायर ने इशारा दिया कि 10वां ओवर मुकम्मल हुआ है। 50 है श्रीलंका का स्कोर। एक खिलाड़ी उनका आउट हो चुका है। सिम्टम्स बेजार हो गया, बैटरी का मसला है। इस मसले का हल सिर्फ मुसाका, बैटरी का राखा सिर्फ मुसाका, चले लंबे अरसे तक पेशेंट डिस्चार्ज, घर फुल चार्ज। This ICC Champions Trophy 2017 is brought to you by सुनहरी
बैंक, रोशन हर कदम। तो इस तरह अब 11वां ओवर शुरू होगा। अम्माद वसीम बॉलिंग करने के लिए आए। इस गेंद को ऑन साइड पे खेल के आसानी से रन हासिल किया बैट्समैन ने। बज़ाहिर दिखवाला और मैंडिस पर कोई प्रेशर नजर आ नहीं रहा है और पहला स्पेल बहुत अच्छा किया। पहले स्पेल से मुराद है जो स्पेल जिसमें दो पाकिस्तान के जो सरकर्दा फास्ट बॉलर हैं वो उन्होंने अटैक शुरू किया था, वो ठीक था। लेकिन जो हिकमत अमली है श्रीलंकन बैट्समैनों की वो ये है कि कोई प्रेशर न लिया जाए और नेशनल गेम खेली जाए और उसमें वक्त तक कामयाब हुए 51 एक विकेट के नुकसान पर और ये एक अच्छी पेशरफ्त है। अम्माद वसीम ने पहली गेंद पर एक रन दिया है, तो अब वो गेंद करने के लिए तैयार हैं डिचवेला को और 19 रन पर है डिचवेला और 21 गेंदों का इन्होंने सामना किया है। दाएं और बाएं जानिब फील्ड का मुआयना करने के बाद अब तैयार हैं। ऑन साइड पर मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड ऑन है। राउंड द विकेट गेंद करेंगे अम्माद। शॉर्ट गेंद थी, इसको पैरेलल स्वीप किया है लॉन्ग लेग पर, एक रन बनाया है बैट्समैन ने और जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते दो आसान रन बना लिए गए। तो इस तरह 53 हो गया है श्रीलंका का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर। आज दोनों टीमों को कप्तानों से जब पूछा गया, जब टॉस जीता तो फैसला किया था और अपना फैसला बताया सरफराज ने कि वो पहले फील्ड करेंगे और जब ये सवाल उनसे पूछा गया श्रीलंकन कप्तान को तो उन्होंने भी कहा कि अगर वो टॉस जीते तो पहले फील्डिंग करते। तो ये वो कंडीशंस हैं। बहरहाल अब कंडीशन जो है वो काफी हद तक लगता है न्यूट्रल हो गई हैं। ये दोनों बैट्समैन सेट हो चुके हैं, अच्छे तरीके से बैटिंग कर रहे हैं और बीच में वक्फे वक्फे से पाकिस्तान के बॉलर्स भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन कहना होगा कि 5.3 की जो औसत है वो बड़ी अच्छी कही जाएगी जब 11वां ओवर जारी है। अगली गेंद का मौका इस्तेमाल वापस बॉलर की जानिब के लिए बैट्समैन किसी रन का इजाफा नहीं। बाएं हाथ से खेलने वाले बैट्समैन को राउंड द विकेट गेंदें कर रहे हैं अम्माद वसीम और कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई सीधी गेंद की जाए या गेंद को हाथ से बाहर निकाला जाए, जिसे उर्फे आम आर्मर कहा जाता है। एक मरतबा फिर आए, ये गेंद शॉर्ट थी, इस बार बाहर निकली लेकिन काफी शॉर्ट थी, इसको बड़े अच्छे तरीके से स्टीयर किया है, प्लेस किया है थर्ड मैन की जानिब 4 रन के लिए। एक मौसर गेंद होती है अगर ये थोड़ी आगे होती, लेकिन बहुत शॉर्ट थी और काफी वक्त मिल गया बैट्समैन को और उन्होंने बड़े इत्मीनान से इसको खेला और वही मकासद हासिल किए जिसको वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहते थे, यानी 4 रन। विकेट कीपर बिल्कुल गेंद के पीछे थे लेकिन थिक आउटसाइड एज लगा और गेंद गया थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। स्कोर में मजीद 4 रन का इजाफा, अब 57 हो गया है एक विकेट के नुकसान पर। 5.34 की औसत से ये रन बने हैं और एक बेहतर आगाज है श्रीलंका का कि गेंद शॉट जिसको ऑफ साइड पर पेश किया, डाइव करके गेंद को रोकने की कोशिश की, फील्डर ने गेंद पीछे गई और इस दौरान 2 रन हासिल कर लिए गए। इन 2 रन के साथ अब स्कोर हो गया है 59 एक विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर 2 रन, तो एक अच्छा आगाज है श्रीलंका के लिए। अम्माद ज्यादातर गेंदें शॉर्ट कर रहे हैं और वो उस नैगिंग लेंथ पर बॉलिंग नहीं कर रहे जो कि एक बाएं हाथ से बॉलिंग करने वाले का खासा होता है। जहां तक ताल्लुक है मैंडिस का, वो भी मिडल कर रहे हैं गेंदों को और बाजुकात एजी स्ट्रोक्स खेल कर ज्यादा रन बना रहे हैं और टिकवेला भी आपने देखा कि वो ऑफ साइड पर प्लेस करते हैं गेंदों को और उन्होंने इस ऑफ साइड के एरिया में अभी तक 6 रन बना लिए हैं पहली 2 गेंदों में। एक मरतबा फिर तैयार है अम्माद वसीम गेंद करने के लिए। अभी ज्यादा तेज धूप नहीं है फिर भी उन्होंने चश्मा लगाया हुआ है। अगली गेंद बेहतर गेंद थी, इसको ऑन साइड पर ड्राइव किया और 1 रन हासिल किया बैट्समैन ने। इस 1 रन के इजाफे से अब श्रीलंका का स्कोर 60 हो गया है 1 विकेट के नुकसान पर। 11 ओवरों का खेल मुकम्मल हो चुका है। जुगाड़ नहीं, वोल्टा चलेगी क्योंकि वोल्टा लाया पाकिस्तान में पहली बार एडवांस टेक्नोलॉजी ट्यूबुलर बैटरी, घंटों रोशन रखे और चले साला साल। वोल्टा, जुगाड़ का तोड़। So both the Sri Lankan batsmen, Dikwela and Mendes, having no problems at all facing the Pakistan bowlers. Ahmad Wasim just finished his over. A poor over by Ahmad Wasim. He was playing all over the pitch. And Ahmed started the proceedings 4 overs, none for 19. Junaid opened the proceedings along with him, 5 overs, 2 maidens,
1 for 28, but his last over, except for the last delivery where he completely beat the batsman, was once again a very poor over, as Fahim Ashraf making his debut from over the wickets, ball for fuller length and steered towards the third man region. The batsmen have picked up one and they're going back for the second. The fielder had to move quite a distance towards his left. So that takes Sri Lanka now on to 62 for 1. Dikwela is on 30. Mendes is on 18. Fahim Ashraf making his debut for Pakistan in this match between Sri Lanka and Pakistan, being played at Cardiff. Vital match for both the teams. They've got to qualify for the semi-final, as he goes in with this one on the pads and tucked towards the square leg region. Fielder moves towards the backcourt of square leg and gets to it. Now the batsman once again very comfortably pick up 2 runs. So runs coming fairly easily for Sri Lanka. They're scoring at 5.65 runs an over, which is pretty good considering the fact that they were put into bat by the Pakistan captain. First wicket fell when the score was 26, when Danushka was caught in the mid-off region by Shoaib Malik of the bowling of Junaid for 13 in the 6th over, caught right at the edge of the 30-yard circle. Perhaps if he would have had an extra boiled egg in the morning, it could have carried over his head, but that was not the case to be. 26 was the score when they lost their first wicket. Now they moved on to 64 for 1 in the 12th over. Fahim Ashraf bowling his very first over at this level. Already conceded 4 runs of the 3 deliveries that he's bowled. Dikwela on strike. He's on 32 of 29 deliveries. Mendes at the non-striker then is on 18 of 20. No slip for Fahim, as this one played and gets the inside edge. The ball takes him on the pad after that, and he was worried whether it could roll down onto the stumps, but lucky that it just dropped dead after hitting the pads. Sri Lanka and Pakistan both desperately vying for that place in the semi-final. Group B match, the last of the Group B match. Tomorrow, of course, will be a rest day, as Fahim from over the wickets to the batsman who tucks him towards the mid-wicket region. The ball once again on the pads. No problem at all for the batsman. They've taken one. They're going back for the second, and as usual very comfortably completes that second run as well. So 66 now on the board for 1. The first semi-final being played on the 14th in Cardiff. That will be England and Bangladesh, and then India plays at Edgbaston with the winner of this tie between Pakistan and Sri Lanka. The last delivery of the 12th over coming up. Sri Lanka put into bat 66 for 1. 5.58 the run rate at the moment, which is pretty good. As Fahim away, ball for Fullerland comes forward, strokes it, but extremely well fielded there by Hafiz in the cover position. That could have easily gone to the boundary, but did well diving towards his right, cutting off that beautiful stroke. The end of over number 12, 66 for 1. ICC Champions Trophy 2017 is brought to you by Sunehri Bank Limited, मेहनत वसूल। जानते हो बेटा, तुम्हारे अब्बा अक्सर सवारी ना होने की वजह से परेशान रहते थे। फैक्ट्री जाने के लिए रोज 3-3 बसें बदलनी पड़ती थी, पर तुमसे कभी कुछ कहा नहीं उन्होंने। आपने मुझे बताया क्यों नहीं हमें? मैं कुछ कोशिश तो करता। अरे तुम्हारे अब्बा बताने दे तो बताऊं ना। कहते हैं मेरे बच्चे पे इतना बोझ ना डाला करो, पर देश में दिन रात मेहनत करता है। आज बहुत खुश है वैसे। तुम्हारी भेजी हुई रकम के साथ कुरानदाजी में मोटरसाइकिल जो निकल आई है। हम करते हैं आपके अपनों की मेहनत की कदर, इसीलिए अब आपको मिलेगी रकम की वसूली के साथ और भी ज्यादा खुशियाँ। दुनिया भर से मनीग्राम के जरिए भेजी गई रकूम सुनहरी बैंक की 285 से ज्यादा ब्रांचेस से वसूल करें और बजरिया कुरानदाजी जीते मोटर बाइक, स्मार्टफोन्स, कैश प्राइजेस और कई शानदार इनामात। मजीद मालूमात के लिए 021-111-766-374। सुनहरी बैंक, रोशन हर कदम। शराइत तो आप लागू है।
हसन अली बॉलिंग करने के लिए आए हैं. ये ओवर द विकेट गेंद करेंगे और ओवर पिच गेंद इसको ऑफ साइड पर ड्राइव किया डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ. यहाँ पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है. फील्डर गेंद के पीछे है. एक रन बनाया है बैट्समैन ने, दूसरा बनाएंगे फील्डर गेंद के पीछे गए, लेकिन उनकी कोशिश बराबर साबित नहीं हुई और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर. तो इस तरह श्रीलंका अब 70 एक विकेट के नुकसान पर. कोई अच्छा आगाज नहीं है हसन अली का, लेकिन वो काफी दिलचस्पी से देखा जाएगा. ये अच्छी बॉलिंग करने वाले बॉलर हैं. ये पहला गेंद जो था उन्होंने विकेटों में किया, सीधी आ रही थी गेंद और इसको ड्राइव किया बैट्समैन ने ऑफ साइड पर और 4 रन हासिल किए. आज श्रीलंका ने बहुत अच्छी बैटिंग की, बाद बुरे शॉट भी खेले, लेकिन मजबूरी तौर पर उनकी कारकर्दगी काबिल सिताइश रही है. हसन गेंद करेंगे और इनका सामना होगा टिकवाला से. श्रीलंका 12 ओवर 1 गेंद 70 रन 1 विकेट. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ये अहम मैच. गेंद इसको ऑन साइड में खेल कर 1 रन हासिल किया बैट्समैन ने. मैच पहुंच गए 23 पर और श्रीलंका का स्कोर क्या है 1 विकेट के नुकसान पर 71 रन. हसन की पहली 2 गेंदों पर 5 रन बने हैं और बहुत जल्द ये अपनी उस 90 दूरी बॉलिंग और उस लाइन और लेंथ को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे जो गेंद का खासा है. ये अच्छी बॉलिंग करने वाले पाकिस्तान के सरकर्दा बॉलर हैं और जाहिर है कि ये आज भी इससे अच्छी बॉलिंग की तवक्को की जा सकती है. ओवर द विकेट आई. ये गेंद शॉर्ट थी, इसको ऑफ साइड पर प्लेस किया, गेंद कई पॉइंट पर और मिसफील्डिंग हुई. और इसका मैंने इस खदशे का इजहार किया था कि ये जो तरीका है मिसफील्डिंग करने का, खासतौर पे पॉइंट का जो इलाका है वो बड़ा अहम होता है. जहां 1 रन नहीं बना था वहां पर 1 रन बना. तो इस तरह टीम पर भी और खासतौर पर बॉलर पर भी प्रेशर डेवलप होता है. अगली गेंद शॉर्ट थी और फ्रीप्ले देख रहे थे, मॉनिटर को फॉलो कर पिछली गेंदों का भी बाजुक आता है, वाला आपको गलती से बता देते हैं. बहरहाल हसन अली की कामयाबियों का एक तसलसल है और तवक्को यही है कि आज भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे. दिफाई स्ट्रोक ऑफ साइड पर और किसी 1 रन का इजाफा हुआ. अब जहां तक सिंगल्स का ताल्लुक है उनको भी रोकना होगा, चौके भी रोकने होंगे, लेकिन फिल वक्त कहना होगा कि पाकिस्तान के बॉलर्स कामयाब नहीं हुए. 6.76 की औसत है और जहां तक श्रीलंकन का ताल्लुक है वो बिल्कुल कामयाब नजर आ रहे हैं नस्पोलैंड के सिलसिले में, जो हदफ है उसके सिलसिले में. और 5.6 की औसत है अब तक, 5.76 की, जो कि बहुत अच्छी कही जाएगी. ऑफ साइड पर जो फील्ड है उसमें पॉइंट कवर मिड ऑफ है. ये वो इलाका है जहां पर श्रीलंकन बैट्समैन डिस्पेल है और मैंडिस लगातार शॉट्स खेल रहे हैं और रन बना रहे हैं. हसन आए, ये गेंद शॉट और इसको पिछले कदम पर कलाई की मदद से खेल दिया है स्क्वायर लेग की तरफ और 1 रन हासिल किया बैट्समैन ने. तो सिंगल्स बन रहे हैं. पहली गेंद पर चौका लगा है, 74 हो गया है स्कोर श्रीलंका का 1 विकेट के नुकसान पर. ये दूसरा पावर प्ले है. हसन आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग के निशान की तरफ, और ये इनके करियर का इब्तदाई जमाना है. इनको लाइन और लेंथ को मेंटेन करना होगा और इस बड़े मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखाना होगी और इस तरह के मैचों में नाम बनता है, मुकाम बनता है. ये गेंद शॉर्ट बीट हो गया बैट्समैन. अब ये बड़ा जबरदस्त रिप्लाई था. इतने रन खाने के बाद 1 चौका और 3 सिंगल्स के बाद इस किस्म की गेंद करना बहुत बड़ी बात है. तो इस तरह 13 ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ. This ICC Champions Trophy 2017 is brought to you by Rue Afzar Ramadan Mubarak. आओ इस रमजान हमदर्द बन जाएं, एक एक मुस्कुराहट बांटते हुए जिंदगी के रंगों में घुल जाएं. रूह अफ़ज़ा रमजान मुबारक. This ICC Champions Trophy 2017 is brought to you by सुनहरी बैंक, रोशन हर कदम. Well, not a very impressive first over by Hassan, except for the last delivery where he beat the batsman. Otherwise, he was straying once again all over the wicket. As Sri Lanka put into bat a 74 for 1. Fahim Ashraf bowling his second over, conceded 6 in the very first that he bowled. Dick Weller is on 36 of 35 deliveries. Mandis is on 24 of 24 deliveries. And they're scoring pretty briskly. And I'm sure at this particular stage, the Sri Lankan camp would be more than happy with the state of affairs. From over the wickets, Fahim Ashraf to Dick Weller, who's on 36. Sri Lanka 74 for 1. This time tucks him towards the mid-on region. Fielder at short mid-wicket tried to get
onto that ball, but he couldn't really pick it up, and the batsmen have picked up another single. That single now takes Sri Lanka to 75 for 1 in the 14th over. Remember, Pakistan captain winning the toss earlier on, putting the Sri Lankans in this vital match for a place in the semi-finals. 75 for 1. None for 7 as away goes Fahim. This one ball was full of length and flicked away towards the mid-wicket region. The fielder from deep square leg moves across, gets to it. Now and the batsman in the meantime once again picking up that 2 runs over there. So runs coming very easily and freely as far as the Sri Lankans are concerned. No problem. The bowlers have really not been able to impress. And the batsmen, give them credit, they're playing it pretty good according to the situation. Mendes on 26 now, 77 for 1. Fahim making his debut for Pakistan today. Moves away over the wickets to Mendes. Once again tucks him towards the mid-wicket region. The fielder from the deep very quickly runs to it, picks it up, and the batsman comfortably pick up another single. 78 now, 78 for 1 in the 14th over. Dikwela now on strike. He's on 37. The Sri Lankans as usual dressed in blue with large coverage of yellow right on from their chest down to their waist, as the collar also in yellow. Pakistan in the normal green. 78 for 1. This time comes down the track, cuts very well. That's going towards the boundary. The fielder very quickly gets to it. Now and the batsmen go back for the second. So 2 more runs to Dikwela. 2 more runs to Sri Lanka. They move on to 80 now. 80 for 1 in the 14th over. Dikwela on to 39. 26 for the score when the Nushka was sent back to the pavilion. It's moved on to 80 now. So very fine partnership developing for Sri Lanka. And it's all about partnership. The bigger the partnership, the larger the total on the board. 54 runs have been added by these two. Of just 53 deliveries. 80 for 1. The last delivery of the 14th over coming up. Being bowled by Fahim Ashraf, who's operating from over the wickets. This time pitches short and the batsman just tucks it in towards the offside and very quickly go for that single. There's been very good understanding between these two. Their running in between the wickets has been very good. The end of that over is 81 for 1. This ICC Champions Trophy 2017 is brought to you by Sunehri Bank Limited, मेहनत वसूल. डियर अली, कैसे हैं आप? हम सब यहाँ ठीक हैं. मैं जानती हूँ आप परदेश में रहकर इतनी मेहनत सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, पर आप अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे. प्लीज इतना ओवरटाइम मत किया करें. पता है गुड़िया अब अटक अटक कर बाबा बोलने लगी है. इस बार आपके भेजे हुए पैसों के साथ लकी ड्रॉ में स्मार्टफोन भी मिला है. आपको ये मैसेज इसी से व्हाट्सएप किया है. हम करते हैं आपके अपनों की मेहनत की कदर, इसीलिए अब आपको मिलेगी रकम की वसूली के साथ और भी ज्यादा खुशियाँ. दुनिया भर से मनीग्राम के जरिए भेजी गई रकूम सुनहरी बैंक की 285 से ज्यादा ब्रांचेस से वसूल करें और बजरिया कुरानदाजी जीतें मोटर बाइक, स्मार्टफोन, कैश प्राइजेस और कई शानदार इनामात. मजीद मालूमात के लिए 02111766374. सुनहरी बैंक, रोशन हर कदम. हसन अली की पहली गेंद, इसको दिफाई अंदाज से बैट्समैन के लिए टिकवाला ऑफ साइड पर, किसी रन का इजाफा नहीं. श्रीलंका 81 1 विकेट के नुकसान पर. और श्रीलंका की जो अच्छी बैटिंग है उसको देखकर ये अंदाजा हो रहा है कि जयवर्धने और संगाकारा जैसे बैट्समैन जा चुके हैं, लेकिन इनके मुल्क में काफी टैलेंट मौजूद है. अगली गेंद मिडिल और लेग स्टंप पर, जिसको ऑन साइड पर खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग पर. एक मुकम्मल किया बैट्समैन ने और फील्डर गेंद के पीछे गेंद को फील्ड किया और सिर्फ 1 रन का इजाफा हुआ. श्रीलंकन बैट्समैन टाइम बड़ा अच्छा करते हैं और आमतौर पर स्ट्रोक खेलते हुए वक्त काफी ले लेते हैं. खासतौर पर जो बैकफुट पे स्ट्रोक खेले गए हैं वो बड़े जोरदार थे और काफी जब वक्त मिल जाए बैट्समैन को, खासतौर पे वो गेंदें जो शॉर्ट होती हैं पिछले कदम पर खेली जाती हैं, जब वक्त ज्यादा मिल जाए तो स्ट्रोक में कुव्वत भी ज्यादा होती है और ऐसे यहाँ पर हो रहा है. काफी
जारहाना बैटिंग की अब तक और एक शानदार रन रेट के साथ 82 रन बना लिए हैं 1 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर और 2 गेंदें फेंकी जा चुकी है गेंद करने के लिए हसन एक मरतबा फिर ओवर द विकेट गेंद करेंगे। ये गेंद मिडल ऑफ स्टंप पर थी, बड़ी अच्छी गेंद और इसको पूरी इज्जत दी बैट्समैन ने, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में, नहीं खेले इस बार मेंडिस गेंद को और गेंद बड़ी अच्छी ऊंचाई से ऑफ साइड ऑफ स्टंप विकेट कीपर सरफराज के ग्लव्स में। हसन अगर अपनी लाइन और लेंथ मेंटेन कर लेते हैं और एक तरफ से प्रेशर डालते हैं तो इससे भी जो तेज रन बन रहे हैं इसमें कुछ रुकावट होगी, कदम लगेगी और पाकिस्तान जो महदूद करने की पॉलिसी है किसी भी टीम को उस पर सही तरीके से कारबंद रहेगा। और पिच गेंद और इस बार नहीं खेल सके बैट्समैन और काफी करीब गेंद थी, पूरे एतमाद मेंडिस ने गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश की। अब ये जो इस किस्म की बॉलिंग है, लेट स्विंग है या अच्छी लेंथ है या इन दी जो स्विंग है वो बैट्समैन को तजब्जुब का शिकार करा देती है और यही वो मौका होता है जब प्रेशर डाला जाता है और कामयाबी हासिल होने के इम्कान पैदा होते हैं। हसन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अब पहली ओवर की आखिरी गेंद पर की बहुत अच्छी गेंद थी जिस पर बैट्समैन रिसीव हुए थे। इस मौके पर जबकि एक बड़ा अच्छा आगाज मिल चुका है श्रीलंका को, हसन ओवर द विकेट आई ये गेंद शॉर्ट भी लो और बोल्ड हो गए, बिल्कुल गेंद सीधी जाके स्टंप्स के ऊपर लगी और जैसा मैं बता रहा था कि एक प्रेशर है जो कि हसन अली ने डाला हुआ है इसमें वो कामयाब हुए और गेंद सीधी जाके स्टंप्स के ऊपर लगी और इस तरह इनिंग्स का खात्मा हुआ, पाकिस्तान को जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई। 82 पे 2 मेंडिस क्लीन बोल्ड हुए हैं और उनका बैट का कोई हिस्सा जो है वो गेंद को नहीं लगा और गेंद सीधी मिडिल स्टंप्स के ऊपर जाके लगी और इस तरह पाकिस्तान को एक जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई है, हसन को जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई है तवक्को के मुताबिक और बहुत खुश और पुरजोश तरीके से उन्होंने अपने दोनों हाथ जो है उनको फिजा में बुलंद किया और इस तरह खुशहाल मेंडिस 27 रन बनाकर आउट हुए, बोल्ड हसन 4 चौके लगाए और इस तरह उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था 93 का और ये एक ब्रिलियंट सक्सेस है जो कि पाकिस्तान को हासिल हुई है। हम करते हैं आपके अपनों की मेहनत की कदर, इसीलिए अब आपको मिलेगी रकम की वसूली के साथ और भी ज्यादा खुशियाँ। दुनिया भर से मनीग्राम के जरिए भेजी गई रकूम सुनहरी बैंक की 285 से ज्यादा ब्रांचेस से वसूल करें और बजरिया कुरानदाजी जीते मोटर बाइक, स्मार्टफोन्स, कैश प्राइजेस और कई शानदार इनामात। मजीद मालूमात के लिए 02111717634। सुनहरी बैंक, रोशन हर कदम। शराइत तो आप लागू है। अब जुगाड़ने वोल्टा चलेगी क्योंकि वोल्टा लाया पाकिस्तान में पहली बार एडवांस टेक्नोलॉजी ट्यूबुलर बैटरी, घंटों रोशन रखे और चले साला साल। वोल्टा जुगाड़ का तोड़। सिम्टम्स बेजान हो गया, बैटरी का मसला है। इस मसले का हल सिर्फ मुसाका, बैटरी का राखा सिर्फ मुसाका, चले लंबे अरसे तक पेशेंट डिस्चार्ज, घर फुल चार्ज। तो इस तरह पाकिस्तान ने दूसरी कामयाबी हासिल कर ली है। मेंडिस बोल्ड आउट हुए हसन की गेंद पर और ये अहम मौके पर एक अहम पेश रफ्त है। दोनों बैट्समैन अच्छे तरीके से बैटिंग कर रहे थे और मैं कहूंगा कि इस सूरत हाल में जब एक सेट बैट्समैन को आउट करना और वो भी मुताबिद गेंद बीट करने के बाद, रिसीव करने के बाद बोल्ड करना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान जो मकासद देख रहा था, पाकिस्तान ने जो ब्रेक थ्रू लेना था वो पाकिस्तान को हासिल हुआ। इन फॉर्म बैट्समैन मेंडिस आउट हो चुके हैं, ये दूसरी कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की है और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना बड़ा अहम है, उतना ही जितना श्रीलंका के लिए है क्योंकि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए कहते हैं कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस तरह पाकिस्तान ने अब कहना होगा कि एक अच्छा आगाज हासिल कर लिया है, मतलूबा नताइज टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करते हुए हासिल कर ली है, एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। मेंडिस आउट हुए, उससे पहले गुरनतने आउट हुए, तो ये दोनों बैट्समैन ऐसे थे जो इनफॉर्म थे और कामयाबी हासिल हुई हसन को और उन्होंने
پرجوش طریقے سے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور خوشی کا اظہار کیا. اور اسی طریقے سے پاکستان کے بقیہ فیلڈر نے بھی ان کو مبارکباد دی. نئی بیٹسمین آ چکے ہیں اور یہ ہیں چندی مل. ان کے لیے کام آسان نہیں ہوگا کیونکہ جس طریقے سے گیندیں کر رہے ہیں حسن علی, میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت جلدی سیٹ ہو پائیں گے. دنیش چندی مل 27 سال عمر ہے, رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین ہے اور 43 میں ان کی ریٹنگ ہے ICC رینکنگ کے مطابق. تو یہ اب تیار ہے سامنا کرنے کے لیے. چھوڑ گئے PW کی اپیل کر سکتے تھے لیکن شاید بیٹ کا کوئی حصہ لگا ہے اور بہرحال بال بچے ہیں. چندی مل کو اچھا استقبال نہیں ہوا, لیگ بائے کا اشارہ امپائر کا. تو اس طرح 83 پہ 2 15 اووروں کا کھیل مکمل ہو چکا ہے. ICC Champions Trophy 2017 is brought to you by سنہری بینک لمیٹڈ محنت وصول. جانتے ہو بیٹا, تمہارے ابا اکثر سواری نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتے تھے. فیکٹری جانے کے لیے روز 3 بسیں بدلنی پڑتی تھی, پر تم سے کبھی کچھ کہا نہیں انہوں نے. آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں امی؟ میں کچھ کوشش تو کرتا. ارے تمہارے ابا بتانے دے تو بتاؤ نا. کہتے ہیں میرے بچے پہ اتنا بوجھ نہ ڈالا کرو, پر دیس میں دن رات محنت کرتا ہے. آج بہت خوش ہے ویسے. تمہاری بھیجی ہوئی رقم کے ساتھ قرآن اندازی میں موٹر سائیکل جو نکل آئی ہے. ہم کرتے ہیں آپ کے اپنوں کی محنت کی قدر, اسی لیے اب آپ کو ملے گی رقم کی وصولی کے ساتھ اور بھی زیادہ خوشیاں. دنیا بھر سے منی گرام کے ذریعے بھیجی گئی رقوم سنہری بینک کی 285 سے زائد برانچز سے وصول کریں اور بذریعہ قرآن اندازی جیتیں موٹر بائک, اسمارٹ فونز, کیش پرائزز اور کئی شاندار انعامات. مزید معلومات کے لیے 021-111-766-374. سنہری بینک, روشن ہر قدم. Welcome back and immediate good news. Fahim has taken his first ODI wicket. This one pitching outside the off stump and batsman, was it Dinesh Chandimal? Yeah. Chandimal wanted to drive it on the offside, inside edge and on to the stumps, and Pakistan has struck twice here. Fahim Ashraf is jubilant. And one wicket to Hassan Ali and the second one to Fahim. And Dinesh Chandimal goes without scoring. So what a good comeback by Pakistan. سمٹمس بیزار ہو گیا. بیٹری کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کا حل صرف مساقہ بیٹری کا راکھا, صرف مساقہ یعنی لمبے عرصے تک پیشنٹ ڈسچارج گھر کھل چارج. یہ گئی بیٹری, کوئی دوسری جگاڑ لگا. جگاڑ نہیں, وولٹا چلے گی کیونکہ وولٹا لایا پاکستان میں پہلی بار ایڈوانس ٹیکنالوجی. ٹیوبولر بیٹری گھنٹوں روشن رکھے اور چلے سالہ سال. وولٹا, جگاڑ کا توڑ. This ICC Champions Trophy 2017 is brought to you by سنہری بینک, روشن ہر قدم. And second delivery of the 16th over is going to be bowled. Fahim Ashraf got rid of Chandimal on the very first delivery, inside edge onto the stumps. And first Hassan Ali was the lucky bowler to get the wicket of Mendes. Pakistan back in game. Otherwise there were some good partnerships, and Fahim delighted with this wicket. And is it Angelo Matthews who's going to come? Matthews is the batsman who's going to take guard from umpire, touches his cap and doing some gardening. And suddenly this wicket is doing something favorable for the batsman, for the seamers. And there were reports that Matthews was not 100% fit some days before, but seems to be okay now. Looks at the field and settles down and bowls this one on the middle stump. Short pay delivery. He plays it back to the bowler.
So the score is 83 for 3. Can Pakistan get a couple of more wickets before the Sri Lanka reaches 100 runs? It's a very crucial match for both the teams, and Hassan Ali has got tendency to bring the ball in. Off he goes, and Fahim. This time batsman is not comfortable against the swing on the ball. Mostly he brings the ball in. But anyhow, because of these two seamers, Pakistan seems to be coming back into this game. Dekwala is once again not out 41. Yeah. He scored 41, I think, in last match against Pakistan. मैच में भी अच्छी इनिंग खेली. Yes, he scored 41 runs. Fahim starts running. Right arm, fast medium, over the wicket, bowls outside the off stump. This one slightly going away, and that is the end of... no, not end. It is... चार गेंदें हुई हैं. well, there were 4 deliveries in 16th over, 83 for 3. We two youngsters doing wonders for Pakistan. हाँ, और यकीनन फहीम अशरफ जो हैं उनकी बड़ी हिम्मत बंधी हुई कि एक विकेट लेने के बाद एक बार फिर आए. गेंद की इस मतलब आफ्टर से काफी बार गेंद थी. इस गेंद को खेला है. गेंद स्वीपर कवर ने जब तक फील्ड की तो पहला रन ये मैथ्यूज के लिए, और 41 रन पर अब डिक्वेला सामना करेंगे. आज अच्छी बैटिंग की है और पाकिस्तान ने अब तक 2 उन कामयाब बैट्समैनों को आउट किया है. पिछले मैच में जब उन्होंने खेला था इंडिया के खिलाफ तो मैथ्यूज ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी. इसके अलावा मेंडिस बहुत कामयाब हुए थे. मेंडिस को आउट करने में कामयाब हुए और पाकिस्तान लकी इस लिहाज से कि 2 गेंदों के फर्क से वो 2 विकेट निकालने में कामयाब हुआ. 14.4 ओवर जब हुए थे तो हसन ने बोल्ड किया था मेंडिस को, और उसके बाद फिर नए आने वाले बैट्समैन चंदीमल भी बोल्ड हो गए थे. हसन अपना फहीम अशरफ की पहली गेंद पर फहीम अशरफ आए. एक बार फिर शॉर्ट गेंद थी. इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए हैं स्क्वायर लेग की जानिब. 1 रन बनाने का मौका इस मरतबा हासिल किया तो 16 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है और स्कोर है 85-2. ICC Champions Trophy 2017 is brought to you by Sunehri Bank Limited, मेहनत वसूल. डियर अली, कैसे हैं आप? हम सब यहाँ ठीक हैं. मैं जानती हूँ आप परदेश में रहकर इतनी मेहनत सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, पर आप अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे. प्लीज इतना ओवरटाइम मत किया करें. पता है गुड़िया अब अटक अटक कर बाबा बोलने लगी है. इस बार आपके भेजे हुए पैसों के साथ लकी ड्रॉ में स्मार्टफोन भी मिला है. आपको ये मैसेज इसी से व्हाट्सएप किया है. हम करते हैं आपके अपनों की मेहनत की कदर, इसीलिए अब आपको मिलेगी रकम की वसूली के साथ और भी ज्यादा खुशियाँ. दुनिया भर से मनीग्राम के जरिए भेजी गई रकूम सुनहरी बैंक की 285 से ज्यादा ब्रांचेस से वसूल करें और बजरिया कुरानदाजी जीतें मोटर बाइक, स्मार्टफोन्स, कैश प्राइजेस और कई शानदार इनामात. मजीद मालूमात. श्रीलंका की इनिंग्स का 16वां ओवर शुरू हुआ है. 17वां 16.1 ओवर में अब तक 86 रन बने हैं. 3 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं. पहली विकेट 25 पर, दूसरी 82 पर और तीसरी भी 82 पर ही गिरी थी. और दूसरी विकेट के लिए अच्छी पार्टनरशिप की थी 56 रन की मेंडिस और डिक्वेला के दरमियान. और इस वक्त स्कोर है 86. 3 खिलाड़ी आउट हैं. कप्तान मेंडिस अब आगे मिले हैं डिक्वेला के साथ. 43 रन पर डिक्वेला बैटिंग कर रहे हैं. मेंडिस है सामने. हसन अली अपना 30वां ओवर करवा रहे हैं. अब तक 10 रन दिए हैं. 1 खिलाड़ी आउट किया है. मेंडिस को उन्होंने बोल्ड किया था. 27 रन बनाए थे मेंडिस ने. दौड़ना शुरू किया था हसन ने, लेकिन फिर रुक गए. 5.3 की औसत से इस वक्त श्रीलंका रन बना रहा है. हसन आए गेंद की इस मरतबा बैकफुट पर आकर आइसिंग की गेंद को मिड ऑन की जानिब पुश किया. मेंडिस ने रन बनने का मौका नहीं. और आज पहली विकेट हासिल की थी जुनैद ने जब मलिक ने कैच पकड़ा था धनुष्का का. 13 रन उन्होंने बनाए थे. उसके बाद फिर अच्छी पार्टनरशिप हुई. 25 रन पर पहली विकेट गिरी थी और 82 रन तक फिर स्कोर को ले जाने में कामयाब हुए थे बैट्समैन.
82 के स्कोर पर फिर 27 रन बनाने के बाद मेंडिस आउट हुए थे. हसन ने उन्हें बोल्ड किया था. हसन आए गेंद की, इस मरतबा बीट करने में कामयाब हुए हैं. जैसी गेंद जो कि ऑफ स्टंप से बाहर थी खेलने की कोशिश की, गेंद बल्ले गए नजदीक से गुजरते हुए विकेट कीपर सरफराज के पास पहुंची तो 56 रन की पार्टनरशिप हुई थी मेंडिस और डिक्वेला के दरमियान. मेंडिस 27 रन बनाने के बाद आउट हुए. उनके बाद खेलने के लिए आए थे चंदीमल और स्कोर में अभी 1 ही रन का इजाफा हुआ था. तो फहीम अशरफ की नए ओवर की पहली गेंद पर वो बोल्ड हो गए थे. अगली गेंद इस मरतबा हसन की बैकफुट पर रहते हुए गेंद के आने का इंतजार किया. आखिरी लम्हे में गेंद को तिरछे बल्ले के साथ खेला, लेकिन गेंद पॉइंट की पोजीशन पर आया. रन बनने का मौका नहीं. फील्डर वहां मौजूद. 17वां ओवर है और हसन अली का ये तीसरा ओवर है. 10 रन दिए हसन ने अब तक और 86 है श्रीलंका का स्कोर. 3 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं. धनुष्का, मेंडिस और चंदीमल आउट होने वाले 3 खिलाड़ी. हसन एक मरतबा फिर विकेट पे पहुंचे. गेंद की इस मरतबा फिर बैकफुट पर आए. गेंद को पुश किया लेकिन गेंद आया कवर में. रन बनने का इस मरतबा भी कोई मौका नहीं. अब तक अच्छी गेंदें करवा रहे हैं. 4 डॉट बॉल हैं. कुल मिलाकर 5 गेंदें उन्होंने अपने इस ओवर की हैं. 1 ही रन बना है जो उनके इस ओवर की पहली गेंद पर बना था. डिक्वेला ने उनके खिलाफ रन बनाया था. 43 रन पर मौजूद हैं. 42 गेंदें खेली हैं डिक्वेला ने. अच्छी औसत के साथ अब तक रन बनाए हैं. नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं. दूसरी जानिब हैं मैथ्यूज. हसन आए गेंद की, एक और डॉट बॉल. इसके साथ ओवर मुकम्मल. अच्छा ओवर खत्म हुआ है. तो 17 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है. 86 है स्कोर श्रीलंका का. 3 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं. This ICC Champions Trophy 2017 is brought to you by Rue Afzar Ramadan Mubarak. आओ इस रमजान हमदर्द बन जाएं, एक एक मुस्कुराहट बांटते हुए जिंदगी के रंगों में घुल जाएं. रूह अफ़ज़ा रमजान मुबारक. Fahim goes away and bowls a short pitch delivery on the leg stump. Batsman plays it towards the square leg region, and Dikwela gets 2. He moves to 45 or 43 deliveries. Niroshan Dikwela. He has struck 3 boundaries. His strike rate is 102, and batting beautifully for Sri Lanka. Fahim gets ready for his next delivery. He has picked up 1 wicket. 88 for 3. Goes away and bowls this time. Beat on there. This one swung. And batsman didn't know anything about that. And bad was the gap. And the ball went through it. And very close to the off stump too. Just sailing over the off stump. Dikwela survives this delivery. And this is 18th over in progress. Here he comes, Fahim. And bowls outside the leg stump. Wanted to flick it on the onside. Misses it. And ball goes to wicketkeeper, and Fahim is once again going back to his bowling end. Well, he is impressed with his bowling, bowling to a good length, and I think this was a good decision to bring him in and give a rest to Shadab, because Sri Lanka, they are very good players of spin bowling, and Fahim could create problems for them of yours for his next delivery, and bowls wide outside the off stump. Umpire signals a wide. 1 more to the total. 90 for the loss of 3 wickets. Still 4 balls remaining in over number 18. Angelo Matthews is batting on 1 of 9 deliveries. Very slow.
so much force behind this delivery that it was wide outside the off stump. Off he goes and bowls, and this time he square cuts it straight to backward point. There is no run, still 90 for the loss of 3 wickets. Dikwala is batting on 45. Gunathaleka was out to catch Malik bowled Junaid Khan 13, and Mendes was bowled by Hassan Ali for 27. Chandimal was bowled by Fahim Ashraf without score, and Matthews is batting on that. There are 4 extras. 1 leg by 3 wide deliveries. First wicket fell at 26, and second at 82, and third at 83. Next delivery this time goes on the front foot and drives it into covers. Fielder from cover point goes, picks up the ball, and there is no run. And still to bat Gunaratne, then De Silva, then there is Pereira, then Lakmal, Malinga and Pradeep. And once again, batsmen get ready. 91 for 3. Sri Lanka. Off he goes and bowls, and this time on the bird stump, plays it on the on side of the wicket, on the back foot, and take a quick single. Ball was a bit away from the fielder and mid wicket. Mohammad Amir has bowled 4 overs, no maidens, no wicket for 19. Junaid Khan 5 overs, 2 maidens, 1 for 28. And Imad Wasim 2 overs for 13, a bit expensive. And Fahim Ashraf 3.2 overs, no maidens, 1 wicket for 19. Hassan Ali 3 overs, no maidens, 10 runs and 1 wicket. Fahim goes, and this time once again square cuts it. Ball goes to deep backward point, fielded there. 1 more to the total, 93 for the loss of 3 wickets. हम करते हैं आपके अपनों की मेहनत की कदर, इसीलिए अब आपको मिलेगी रकम की वसूली के साथ और भी ज्यादा खुशियाँ। दुनिया भर से मनीग्राम के जरिए भेजी गई रकूम सुनहरी बैंक की 285 से ज्यादा ब्रांचेस से वसूल करें और बजरिया कुरानदाजी जीतें मोटर बाइक, स्मार्टफोन्स, कैश प्राइजेस और कई शानदार इनामात। मजीद मालूमात के लिए 021-111-766-374। सुनहरी बैंक, रोशन हर कदम। शराइत ज़वाबित लागू है। This ICC Champions Trophy 2017 is brought to you by सुनहरी बैंक, रोशन हर कदम। India and Bangladesh have already qualified for the semi-finals, and this crucial match, let's see who enters into the semi-final from this group. It's a lovely ground, Cardiff ground, Sophia Gardens. Some light has improved, and sun is now, I think, there falling on the ground. Off he goes and bowls on the leg stump this time. Nicely played on the on side of the wicket, but there was no possibility of any single. 94 for the loss of 3 wickets. Dikwala is batting on 47. Matthews is batting on 2. Matthews is a very experienced campaigner. He has played for Sri Lanka so many times, and they have come to the team's rescue. Dikwala is a new batsman, but he has impressed everyone with his performances. Hassan has got the ball with him. Got the wicket of Mendes, whom he bowled of a lovely delivery. Off he goes and bowls, and this time the leg stump flicks it nicely past the square leg umpire, and 1 more run to Dikwala. And one batsman who failed today was Gunathaleka, who performed very well in the previous match but was out for 13 today. Chandimal, the experienced Chandimal, fell to Fahim Ashraf, ball pitching outside the off stump, and he went for a big drive inside edge and onto the stumps. Off he goes and bowls. Hassan really feels well, stops the batsman from taking a single. Very, very
strong cricketer. Well, while bowling, he's an elegant bowler. What a good fielder is he, but not a good catcher. He dropped a couple of sitters in the previous games. But in the outfield, he otherwise is a good fielder. 95 for 3. Lush green outfield. Hassan goes away and bowls on the next stump. This time flicks it nicely past the mid-wicket. There is a fielder from mid-on who is chasing the ball. Wayward throw. A couple of runs will be on the score. 96 for the loss of 3 wickets. So many Sri Lankan families have come to see the match, and many of them have come with their children. Off he goes and bowls outside the off stump. Batsman leaves it for wicketkeeper. Dick Willer is batting on 49, and Matthews is batting on 3. Off he goes and bowls outside the off stump. Batsman wanted to square cut it, misses, flashes, and lucky to survive the delivery. That's the end of this over. ICC Champions Trophy 2017 is brought to you by सुनहरी बैंक लिमिटेड मेहनत वसूल। जानते हो बेटा, तुम्हारे अब्बा अक्सर सवारी ना होने की वजह से परेशान रहते थे। फैक्ट्री जाने के लिए रोज 3-3 बसें बदलनी पड़ती थी, पर तुमसे कभी कुछ कहा नहीं उन्होंने। आपने मुझे बताया क्यों नहीं अम्मी? मैं कुछ कोशिश तो करता। अरे तुम्हारे अब्बा बताने दे तो बताऊं ना। कहते हैं मेरे बच्चे पे इतना बोझ ना डाला करो, पर देश में दिन रात मेहनत करता है। आज बहुत खुश है वैसे। तुम्हारी भेजी हुई रकम के साथ कुरानदाजी में मोटरसाइकिल जो निकल आई है। हम करते हैं आपके अपनों की मेहनत की कदर, इसीलिए अब आपको मिलेगी रकम की वसूली के साथ और भी ज्यादा खुशियाँ। दुनिया भर से मनीग्राम के जरिए भेजी गई रकूम सुनहरी बैंक की 285 से ज्यादा ब्रांचेस से वसूल करें और बजरिया कुरानदाजी जीते मोटर बाइक, स्मार्टफोन्स, कैश प्राइजेस और कई शानदार इनामात। मजीद मालूमात के लिए 021-111-766-374। सुनहरी बैंक, रोशन हर कदम। शराइत तो आप लागू है। तो 3 खिलाड़ी आउट हैं श्रीलंका के। पाकिस्तान की दावत पर बैटिंग करते हुए धनुष्का आउट हुए हैं 13 रन बनाने के बाद। मेहंदी 27 और चंदीमल बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। फहीम, हसन और जुनैद कामयाब बॉलर। पहली बार लाया गया है हफीज को गेंद करवाने के लिए। पहली गेंद दिकवाला इस गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे, गेंद बैट से टकराई। अपील जरूर की बॉलर और विकेट कीपर ने, लेकिन गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। हफीज एक मतबा फिर दिकवाला है सामने। गेंद की इस मतबा इस गेंद को निकालने में कामयाब हुए हैं स्क्वायर की जानिब।